A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the practical as well as the theoretical concepts related to the chapter number 5, that is an retirement or death of a partner. And you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the adjustment related to this chapter. That is number 1, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Number 2, different cases related to the valuation of goodwill and accounting treatment of goodwill on the retirement or death of a partner. Number 3, accounting treatment of profit or loss on revaluation of assets and liability. Number 4, accounting treatment of specific reserve, general reserve, accumulated profit and accumulated losses on the retirement or death of a partner, as well as we discussed how we will pay the due amount to the retiring partner or the legal representative of deceased partner. And as well as we solve a lots of the practical question for creating a better understanding regarding all these topics. So now in this video, in this section, firstly we solve the questions, question number 30 of your book. The question number 30 will be related to the accounting treatment of general reserve and accumulated profit and deferred revenue expenditure. So the question is, A, B, C are partners in the ratio of 3:2:1, and C retires from the firm, and the new profit sharing ratio between A and B will be agreed at 3:1. The another information is also given. They also decided to record the effect of the following without affecting their book value. So it is very clearly given in this question that they also decided to record the effect without affecting their book value. So you know very well, in the chapter number 3, change in profit sharing ratio among existing partner, हम लोगों ने डिफरेंट केसेस पढ़े थे रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, accumulated profit, accumulated losses, and the distribution of profit or loss on the revaluation of assets and liability. Is that there are two situations: when they want to distribute, or number 2, when they do not want to distribute. In other words, we can say that they want to record the revised value, or when they do not want to record the revised value. So वही केस, वही सिचुएशन, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, चाहे एडमिशन के केस में, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती थी कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू और डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो वी विल टेक द केस नंबर 1 कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, accumulated profit, accumulated losses, or they want to record the revised value in the books of it. ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है जब there is a no information. बट यहाँ क्वेश्चन ने क्लियरली कह दिया है कि they also decide to record the revised value, record the effect without affecting their book value. वो बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना चाहते, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। तो सिचुएशन में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, in this situation जनरल रिजर्व हो, चाहे स्पेसिफिक रिजर्व हो, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, सबको हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among partner
sacrificing ratio just like goodwill. मैंने आपको ये भी वर्ड बताया था, इस सिचुएशन में आप एक वर्ड याद रखिएगा, just like goodwill. जैसे हम गुडविल में करते थे वैसे यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन में एंट्रीज को पास करेंगे. सो बेसिकली यू कैन सी दैट the information is related to general reserve 1 lakh, profit and loss 45,000. so ये दोनों लायबिलिटी में शो होता है, इसलिए इसको ऐड करेंगे. एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज 25,000 जो एसेट्स में शो होता है, इसलिए इसको राइट ऑफ करेंगे. सो वैल्यू कितनी निकल के आएगी अगर आप देखें, सो एडजस्टमेंट वैल्यू आएगी जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू 45,000 से ऐड करेंगे और माइनस करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की वैल्यू इज 25,000. सो बैलेंस कितना बचा 1,20,000. और इस एडजस्टमेंट एंट्री को क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो की वैल्यू से. पहला हमारा स्टेप 1 हो गया, हमने एडजस्टमेंट वैल्यूज निकाले. फिर दूसरा वैल्यू है हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं. तो ये रिटायरमेंट का केस है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ए बी सी. अब ए का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या है 3/4, बी का 1/4, सी तो क्या कर रहा है रिटायर कर रहा है, इसलिए इसका न्यू रेशियो वो करें. और ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो है ए का 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6. अब 6 and 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 3 9 minus 6, यहाँ पर कितना होगा 12, 3 minus 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 minus 6. ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/12, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये 3/12 गेन कर रहा है. सो यू कैन सी दैट इन द स्टेप नंबर 2 वी फाइंड दैट कि ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है. सो आपको पता है ना कि जब विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं, जस्ट लाइक अ गुडविल. सो ए इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल. अब एडजस्टमेंट वैल्यू कितनी आई है, एडजस्टमेंट वैल्यू आई है 1,20,000. सो 1,20,000 का बी कितना बी को कितना मिलेगा 1/12 यानी कि 10,000. सी को कितना मिलेगा 1,20,000 का 1/6 यानी 20,000. टोटल अमाउंट कितना होगा 30,000. सो दिस इज a single adjustment entry at the time of the retirement of the partner, and they also decided to record the effect but without affecting their book value. And you can see that in this situation हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और जो जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी गुडविल की तरह. सो इन दिस सिचुएशन वी फॉलो द 3 स्टेप. स्टेप 1 सबसे पहले एडजस्टमेंट वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना, फिर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उनको क्रेडिट करना और गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना. जो एडजस्टमेंट वैल्यू है उसको उनके गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे, सैक्रिफाइसिंग शेयर्स के बेसिस पे वो कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना. ओके, सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 in your copy properly. Question number 33 says that Manoj, Naveen and Deepak are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Manoj, Naveen and Deepak are partners 4:3:2. As at 1st April 2018, the balance sheet as follows: creditors 7,000, capital Manoj 50,000, Naveen 39,000, Deepak 30,000, cash in hand, data, stock and plant and machinery, motor car, building and goodwill.
So Deepak retired on the above date as per the following terms. Goodwill of the firm is 21,000. Stock to be appreciated by 10%. Provision should be 5% on debtor. Machinery is to be valued 5% more than the book value, and motor car is revalued at 15,500. Retiring partner took over the motor car at this value. यानी मोटर कार को रिटायरिंग पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया. दीपक भी पेड 2000 इन कैश. यू नो वेरी वेल कि दीपक रिटायर हो रहा है, तो दीपक को हमने क्या किया, पे कर दिया. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट दीपक रिटायर्स, एंड इन दिस सिचुएशन हम उसे 2000 कैश में दे रहे हैं एंड बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज नॉन अकाउंट. सो शो नेसेसरी जर्नल एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट. So firstly we have to prepare the revaluation account, and the format of revaluation account are as follows, that is in particular amount. Okay, so this is the format of revaluation account. So the revaluation account, firstly you can see that stock to be appreciated by 10%. So it is in profit by stock कितने परसेंट से एप्रिशिएट हुआ, 10%. स्टॉक की वैल्यू है 13,500, 135. सेकंड, प्रोविजन हमें बनाना है 5% ऑन डेटर. तो पहले आप देख लो, प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर. 19,000 का 5% में बनाना है. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिक्वायर्ड कितना है, 19,000 का 5%. 950 बट हमने ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बना के रखा है, ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बना के रखा हुआ है, इज 1400. सो इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है उसे क्या करना है, कम करना है. कितना कम करना है, 450 कम करना है. So this will be the profit on creation of provision for bad debts will be 450. How? क्योंकि हमें बनाना था 950, ऑलरेडी हमने कितना क्रिएट करके रखा है 1400. so 450 प्रॉफिट हो गया, नहीं 450 हमें कम बनाना है. so provision for bad debts हमें कम करना है 450 से. next, machinery is to be valued at 5% more than its book value. सो मशीनरी की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है कितने से, 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू. सो मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, मशीनरी है आपकी 18,000 का 5%. 0 से 0, 0 से 0, 900. Now मोटर कार इज वैल्यूड एट 15,500, whereas the मोटर कार की वैल्यू कितनी है, 20,000. सो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. कितना, पहले था 20,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 15,500, तो 4,500 वैल्यू रिड्यूस हो गई. और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब आप बैलेंस करोगे, सो यू कैन सी दैट लॉस इज 4,500, whereas the profit on revaluation will be 13, 17, 18, 1800, 2700. इधर का टोटल आ रहा है, सो डिफरेंस हम निकाल ले रहे हैं 4500 माइनस is 1800, and this 1800 will be taken as a loss on revaluation, और इसे हम लोग M, N और D में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो 4:3:9. सो 49, 39 एंड 29 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. थोड़ा सा इसको स्पेस और नीचे लेके जाएंगे और थोड़ा नीचे रहेगा ये वैल्यू, और ये हमेशा टोटल सामने रहता है पैरेलल.
अब इसको डिवाइड करिए 800, 600, 400. So this will be known as a loss on revaluation 1800. Am I right? Yes. Now we are moving to the preparation of the partners capital account. और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देयर आर बेसिकली 3 partners and name of the partner is Mohan, Naveen, Deepak. Mohan, Naveen and Deepak. First of all we write down the opening capital by balance BD. Opening capital of Manoj is 50,000, Naveen is 39,000 and Deepak is 30,000. And you can see that D retires. So हम one by one पहले रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर देते हैं. रिवैल्यूएशन करने क्या हुआ था? लॉस हुआ था. सो लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन तीनों में क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे 800, 600 एंड 400. प्रॉफिट होता तो इधर लिखते. उसके साथ ही साथ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. उसको हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं बिटवीन ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. सो गुडविल को भी हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे. एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 3000. इस 3000 को हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में राइट ऑफ करेंगे. ओके, सो 3000 को 4:3:2 में जब राइट ऑफ करेंगे सो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4. ओके, 4000 डिवाइडेड बाय 3 133 समथिंग आएगा यहां पर. और हम लोग क्या करेंगे? 1333. ओके, 1666 सॉरी 1667. उसी तरह से यहां पर मल्टीप्लाई करना है 3 से तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000. सिमिलरली यहां पे हमें 4 करना है. सो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 3. 3 × 3. हाँ, यहां पर अगर 4 होगा 2 होता तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता. सो यहां पर 667 हो जाता और यहां 1661333. So this is a distribution of the 3000 that is in goodwill, and after that you can see that the adjustment number 5th is motor car is revalued at 15,500 and this motor car will be taken over by retiring partner. Retiring partner means Deepak. दीपक में जब कोई एसेट्स टेक ओवर करता है तो अभी यू कैन सी दैट द जनरल एंट्री विल बी अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. सो हम यहां पर इसको किस साइड शो करेंगे? इन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो मोटर कार विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 15,500. So now you can see that Mohan, Naveen and Deepak are partner in the ratio of 4:3:2 and D retires. So the new ratio will be of Mohan and Naveen is the 4:3. It is a new ratio as well as the gaining ratio. So Mohan and Naveen दोनों ही क्या करेंगे? गुडविल प्रोवाइड करेंगे टू द दीपक. और उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अभी आप हम लोगों ने इस पे डिस्कशन भी किया है. उसकी जनरल एंट्री होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक्स कैपिटल. ओके, दीपक का गुडविल कितना बनेगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 21,000. सो 21,000 का रिटायरिंग कितना, उसका शेयर कितना है? 2/9. ओके, सो 3 3s are 9 7. It is at 14,000. 14,000 divided by 3. So it will be 4s are 12, 2, 6, 6, 7. And this 4,667 will be provided by Mohan
in their gaining ratio, and the gaining ratio is 37 and 47. So इसको भी हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, एंड द वैल्यू इज, so now you can see that n बॉन्ड करेगा 2667, where is n बॉन्ड करेगा 2000 और g को प्रोवाइड किया जाएगा 4667. So in the credit side of these capital we write down by Mohan's capital, by Naveen's capital, and the amount is 2667 to Deepak and 2000 to Deepak by Naveen. And also it will be shown in the debit side of the partner's capital account with the name of retiring partner, that is in Deepak's capital. मोहन में से कितना चार्ज किया जाएगा 2667 और नवीन में से चार्ज किया जाएगा 2000. Apart from this, you can see that the adjustment number 6, motor car is revalued. Deepak to pay 2000 in cash. So Deepak को हम 2000 कैश में पे करेंगे और बैलेंस अमाउंट को दीपक के किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दीपक के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. यही बोल रहा है क्वेश्चन में. एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, चीजों को बैलेंस करेंगे. ओके, सो जब हम इसको रफली बैलेंस करेंगे, सो वी कैन सी दैट 16,100 इन द लोन अकाउंट ऑफ दीपक, एंड नाउ बाकी बैलेंस करेंगे तो मनोज का बैलेंस आएगा 45,200 और नवीन का बैलेंस आएगा 35,400, क्योंकि उन्होंने सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया. सो यू कैन सी दैट हाउ वी विल प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट on the retirement of any partner, and you can see that how we will write off the goodwill which are already appear in the balance sheet, which are already appear in the books, which means it is already shown in the asset side of the balance sheet. And number 2, how we will provide it the amount of goodwill to the retiring partners from the remaining partner in their gaining ratio. So ये इसकी जनरल एंट्री है और ये उसकी पोस्टिंग है इन द पार्टनर्स कैपिटल. ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द पार्टनर. एडमिशन में क्या होता था, बाय टीएफजी लिखते थे और वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर बियर कर लेते थे. लेकिन यहाँ पर इसका इफेक्ट दोनों साइड पड़ेगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर्स के में क्रेडिट होगा और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें डेबिट होगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल देंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स गुडविल को बॉन्ड करेंगे, मतलब प्रोवाइड करेंगे. Please note down the revaluation account and partners capital account, and thereafter we have to prepare the revaluation, we have to prepare the cash account. So after preparation revaluation account, partners capital account, हम बनाएंगे cash account, क्योंकि यहाँ पर cash का inflow और outflow हुआ है. कैसे हुआ है? When you see that the cash account, the opening balance of cash will be 5,900, and you can see that हम लोगों ने दीपक को उसके रिटायरमेंट के टाइम 2000 पे कर दिया. सो जैसे ही हमने उसको पे किया, सो उसको हम लोगों ने किस साइड शो किया, इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट 2000, और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 3,900, which will be shown in the asset side of the balance sheet. यानी अब ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होगा. सो ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट. अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. सो जब हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे, सो आपको कुछ चीजें याद रखनी कि मोटर कार को शो नहीं करना है, क्योंकि उसको ऑलरेडी किसने टेक ओवर कर लिया है, दीपक ने, वो चला गया है फर्म से. स्टॉक में 1350 ऐड करना है. प्रोविजन आप सिर्फ और सिर्फ 450 से रिड्यूस कर देना है, क्योंकि आपका प्रोविजन की कम जरूरत है. मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है. ये सब कुछ एडजस्टमेंट्स करते हुए हमें बैलेंस शीट बनाना है ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म. तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, सो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली.
This is a liability side amount, asset side and amount. सबसे पहले हम लोग राइट डाउन करेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में यू कैन सी दैट वो इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स के बारे में नहीं थी, इसलिए उसको डिक्टो वैसे का वैसे ही कॉपी कर। नाउ हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब एक पार्टनर रिटायर कर चुका है, दैट इज दीपक। सो दीपक को कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मनोज एंड नवीन की कैपिटल लिखेंगे। मनोज एंड नवीन, मनोज की कैपिटल कितनी है 45,200 और दीपक की है 35,400। उसके साथ लोन अकाउंट ओपन करेंगे, किसका, दीपक का, क्योंकि दीपक का जो बैलेंस अमाउंट है 16,100 अभी उसको पे नहीं किया गया, उसके लोन अकाउंट में शो किया गया, और ये लोन अकाउंट हम कहां शो करते हैं, द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अपार्ट फ्रॉम दिस कैश इन हैंड की बात करें, जिसे मैसेज में शो करना है, तो कितना शो करना है 3,900। उसके साथ साथ डेटर भी आपके 19,000, उसमें आपको सिर्फ 5% प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बनाना है 1400 ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें से 450 आपको नहीं बनाना था, सिर्फ 5% ही रिक्वायर्ड था, तो 5% ही बनाएंगे। यहाँ पर 5% कितना आएगा 950, तो ये वैल्यू हो जाएगी 18,050। ओके, यस। नाउ स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हुई थी 13,500 से 10% इंक्रीज हुई थी 1350, सो क्लोजिंग वैल्यू विल बी 14,850। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 था, और प्लांट एंड मशीनरी में 5% इंक्रीज हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी पे 5% इसमें ऐड कर देंगे 900, सो न्यू वैल्यू विल बी 18,900। एंड आफ्टर दैट मोटर कार को तो टेक ओवर कर लिया था, और बिल्डिंग में कोई चेंजेस हुए थे नहीं, बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही था। गुडविल भी शो नहीं करेंगे, गुडविल ऑलरेडी क्या हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है। मोटर कार इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे ऑलरेडी रिटायरिंग पार्टनर या किसी भी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है। सो ये बन गया आपका बैलेंस शीट। अब आप इसको इक्वल कर लीजिएगा, मतलब टोटल कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक इक्वल आएगा 1,03,007। ओके, so please note down the balance sheet of the question number 33, and you can see that how we will prepare the balance sheet on the retirement of the partner. So you can see that in today's video as well as in the last video, we discussed a lots of the important cases related to the retirement and death of a partner. Firstly, we discussed the accounting treatment of profit or loss on revaluation of assets and liability. Thereafter, we discussed the accounting treatment of specific reserve, general reserve, and accumulated profit and accumulated losses. And we solved a lots of the practical question related to this. As well as we solve the question number 33, by which we can develop how we will develop a knowledge related to the preparation of the revaluation account, partner's capital account, and revised balance sheet on the retirement of any partner. And we can see that what journal entry will be passed when any partner takes a liability or when any partner takes an assets at any value at the time of retirement or death of a partner, how it will be shown in the partner's capital account, and what are the effect of such adjustment on the balance sheet of the